Hello students. Today we're going to learn about Dr. Faustus, which was written by Christopher Marlowe. In this phase we're going to discuss about number 1 about the author, number 2 summary, number 3 all scene from 1 to 23 explained, and number 4 background and themes of the play Dr. Faustus. So, students, these notes will help you to make notes about the author, summary, and background and themes. From the beginning to end, this was very helpful for your ignore or continue master's degree. So, without wasting our time, let's begin with our topic number 1 about the author. Hello, student. Before going to our topic, I want to say you all that first we read the above paragraph and then I explained you after reading. So about the author, Christopher Marlowe was born in Canterbury, Great Britain in 1564, the second son of a shoemaker. He attended King's School in Canterbury and graduated from Corpus Christi College in Cambridge. Rather than becoming a clergyman, Marlowe moved to London, where he became a playwright. Among his most important plays, written between 1585 and 1593, are Tamburlaine the Great, the famous tragedy of the rich Jew of Malta, the massacre at Paris, the troublesome reigns and lamentable death of Edward II, and his most important famous work, The Tragical History of Dr. Faustus, first published in 1604. He also wrote non-dramatic work and poetry. His short life in London was characterized by scandal and disruptive behavior, which repeatedly led him into problems with authorities. In May 1593, he was arrested on charge of atheism and heresy. In the same month, soon after his release, he was stabbed to death in a tavern in an obscure episode involving a fight over a bill. So, here we came to know about the author, and from the above line, we came to know what the author Christopher life was. We came to know that the author Christopher Marlowe was born in Canterbury, which is in Great Britain, and he was born in the year 1564 and was a second son of a shoemaker. He attended his high school in King's School in Canterbury and graduated from Corpus Christi College in Cambridge. And rather to become a clergyman, Marlowe moved to London, where he became a playwright. And among his most important plays, written between 1585 and 1593, are Tambourine the Great, which also inspired Shakespeare. Then, after that,
the famous tragedy of the rich Jew of Malta, the massacre at Paris, the troublesome reigns and lamentable death of Edward II, and his most famous work include the tragical history of Dr. Faustus, first published in 1604, which we study yet, and was also famous in the name of Dr. Faustus. As we also came to know about his arrest and death due to involving a fight over a bill. So till here we got the information about the author. So before beginning with summary, I want to discuss you about the meaning which we learn from the topic about the author. Here the meaning clergyman means priest. In Hindi it's mean purohit or pandit. Another one scandal means kant, ninda or badnami in Hindi. Disruptive means हानिकारक, harmful or injurious. Asceticism means nastikta or misfaith. Heresy means vidharma or misbelief. Stepdeath means छुरा घोपना or marna. Tarvan means bar or public drinking house. Obscure means अस्पष्ट or unclear. So here are the meaning of those words which we study in the topic about the author, and I felt it was difficult, so here are the meaning of the above. So hope you all understand. Now let's begin with our next topic, summary. Now we begin with our second topic, summary. In this, I read the above line and later I'll explain it to you in Hindi language. So listen it carefully. Summary. Dr. Faustus, a German scholar, felt that traditional science don't satisfy him any longer and is tempted into exploring what magic can offer. Helped by two colleagues, Valdes and Cornelius, he summoned Lucifer, the devil, and is visited by his minister Mephistopheles. Though he make an agreement with the devil, he will get 24 years of unlimited power in exchange for his soul. तो दोस्तों यहाँ तक हमने पढ़ा कि डॉक्टर फोर्टस एक जर्मन स्कॉलर हैं जिन्हें अपना ट्रेडिशनल साइंस से सेटिस्फाई नहीं थे, यानी इन्होंने बहुत से नॉलेज गेन कर लिया थे और ये नॉलेज से वो सेटिस्फाई नहीं थे और वो मैजिक सीखना चाहते थे। और उनके जो दो कॉलेजेस थे, वेल्डेस और कोर्नेलियस, उनकी मदद से उन्होंने लूसीफर जो डेविल है, यानी जो हेल के गॉड माने जाते हैं, उन्हें याद किया। जब लूसीफर को डॉक्टर फोर्टस याद कर रहे थे तब उनका जो मिनिस्टर है मेफिस्टोफेलिस वो आया और उनके साथ डॉक्टर फोर्टस ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि वो 24 साल तक उन्हें अनलिमिटेड पावर दे और उनके एक्सचेंज में
डॉक्टर फोर्टस उन्हें अपना सोल यानी आत्मा सौंप देगा। Fortus' servant Wagner hired an assistant for himself, Robin। और हम यहाँ देख रहे हैं कि दूसरा कैरेक्टर का इंट्रोड्यूस हुआ है जिसका नाम है वैगनर। और वैगनर डॉक्टर फोर्टस का सर्वेंट है जिसने खुद के लिए एक असिस्टेंट हायर किया है और उसका नाम है रोबिन। Robin and his friend Rafe will try to use Fortus' book to earn benefit for themselves। और जो रोबिन है और उसका दोस्त जो रेफ है उसने डॉक्टर फोर्टिस की जो मैजिकल स्पेल की बुक थी अपने फायदे के लिए यूज किया। Armed with unlimited knowledge and magic, Fortus visited the court of all-powerful king and earned a reputation as the most skillful scholar in Europe। और जैसे कि डॉक्टर फोर्टस ने अपना सोल डेविल को सौंप दिया, उसके बाद में डेविल ने उसे मैजिकल बुक दिए और साथ ही साथ जो मेफिस्टोफेलिस था उसे उसका असिस्टेंट बना दिया गया। और जैसे ही डॉक्टर फोर्टस मैजिक लर्न करते गए वो बहुत से पावरफुल किंग के कोर्ट में गए और उन्होंने एक रेपुटेशन हासिल कर लिया था मोस्ट स्किलफुल स्कॉलर के नाम से यूरोप में। ऑलवेज स्कॉन्डेंट बाय मेफिस्टोफेलिस। और मेफिस्टोफेलिस उन्हें हर टाइम असिस्ट करता था उनके जर्नी में। ही विजिटेड रोम where he played tricks on the Pope and the King of Germany, for whom he bring the spirit of Alexander the Great and his wife। और मिथिस्टोफिलिस और डॉक्टर फोर्टस रोम गए और रोम जाते समय उन्होंने ट्रिक्स किया पोप पर। पोप वहाँ के जो क्रिश्चियनिटी में हमारे पास्टर होते हैं वैसे ही माने जाते हैं। और उसके साथ ट्रिक करने के बाद डॉक्टर फोर्टस किंग ऑफ जर्मनी के कोर्ट में गए जहां किंग ने कहा कि वो अलेक्जेंडर और उसके वाइफ को देखना चाहते हैं। और उनके डिमांड पर डॉक्टर फोर्टस ने दोनों अलेक्जेंडर और उनकी वाइफ का स्पिरिट को बुलाया और किंग ऑफ जर्मनी को दिखला दिया। He is ruthless to those who doubt his power or define him in any way। और जो डॉक्टर फोर्टस थे उनके पावर का अगर कोई डाउट करता था तो उन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे ही हम स्टोरी में पढ़ते जाएंगे डॉक्टर फोर्टस को एक व्यक्ति उनके पावर यूज़ करते समय उनकी मजाक उड़ाता है और वो मजाक उड़ाते समय डॉक्टर फोर्टस गुस्से में उसका सिंग निकाल देते हैं और किंग ऑफ जर्मनी के आदेश से फिर से वो जो सिंग निकालते हैं उसे वापस कर देते हैं, यानी वो व्यक्ति को फिर से नॉर्मल कर देते हैं। When the 24 years come to an end, and having tasted heaven when he kissed Helen of Troy, whom he asked Mephistopheles to make his lover। और जैसे ही उनका लास्ट
24 ईयर्स ख़त्म होने वाले थे, उन्होंने मेफिस्टोफेलिस को आदेश दिया कि वो हेलेन ऑफ ट्रॉय को डॉक्टर फोर्टस की गर्लफ्रेंड बना दें। और जब मेफिस्टोफेलिस ने वो आदेश मान लिया, तब डॉक्टर फोर्टस ने हेलेन ऑफ ट्रॉय को किस किया। उस टाइम उसे हेवन का दर्शन, यानी हेवन कैसा होता है, वो फील हुआ। उसके बाद में फोर्टस वांट टू रिपेंट। फोर्टस फिर से ईश्वर को याद करना चाहते थे, बट विथ हिज सोल अंडर द कंट्रोल ऑफ द डेविल ही कांट। और डॉक्टर फोर्टस ने आगे ही डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि 24 वर्ष के बाद वो अपने सोल लूसीफर को दे देंगे। इसके कारण वो रिपेंट नहीं हो सके। इवन दो हिज फेलो स्कॉलर वांट टू हेल्प हिम, उसके अलावा उनके दोस्तों ने भी बहुत सहायता करने की कोशिश की, पर at midnight on the 24 years he is taken by Lucifer and Mephistopheles in eternal hell। परंतु उसी मिडनाइट 24th डे जब पहुंच गया, तब लूसीफर और मिथिस्टोफिलिस ने उनको इंटरनल हेल में ले गया। इधर जो स्टोरी टेलर है वो बताना चाहते हैं कि while the storytellers want the audience to learn from Future's downfall and see how he failed to turn knowledge into wisdom। स्टोरी टेलर इधर बताना चाहते हैं कि फुटर्स के पास नॉलेज होते हुए भी वो उसका प्रयोग कैसे नहीं कर सके, यानी उनकी नॉलेज जो थी वो बढ़ती गई और उनकी चाह बढ़ने के बाद उन्हें हेल ले गया लूसीफर। तो दोस्तों, अब हम सीन के बारे में इस पर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। और ये जो सीन है वो आप अपनी स्टोरी या समरी में भी लिख सकते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड आप अगर ये नोट्स लिखेंगे, अगर डॉक्टर फुटर्स के बारे में कुछ भी आया क्वेश्चंस में, तो आप ये लिख सकते हैं और ये नोट्स है जो आपकी मार्क्स स्कोर करने में सहायता करेंगे। तो दोस्तों, हम सीन 1 to 4 देखते हैं पहले। हैविंग had a brilliant career, Dr. Fortas feels he has to decide what to do in the future. Philosophy, medicine, law and theology don't satisfy him any longer। डॉक्टर फोर्टस को फिलोसफी, मेडिसिन, लॉ एंड थियोलॉजी का ज्ञान था, पर वो उससे सेटिस्फाई नहीं थे। Attached by the secret of magic, he decided to discuss the matter with two colleagues। और वो टेम्पटेड होते गए सीक्रेट ऑफ मैजिक से, यानी उनकी चाह बढ़ गई मैजिक सीखने के लिए। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बारे में अपने दो कॉलेजियस से चर्चा करेंगे, जिसका नाम वेल्डिस एंड कॉर्नेलियस था। बोथ वेल नोन फॉर प्रैक्टिसिंग द इविल आर्ट, और दोनों को काला जादू का बहुत नॉलेज था। While he waits for them, two angels visited him। Good angel want him to abandon his new plans. The devil angel promise the power that come with the knowledge of all nature's secret। और जब डॉक्टर फुटस वेट कर रहे थे, तब उनके सामने दो एंजल आए, गुड एंजल और बैड एंजल। गुड एंजल ने उन्हें समझाया कि वो एबोडन कर दें, यानी परमानेंट लीव कर दें वो ख्याल जो वो सोच रहे हैं, यानी बैक मैजिक सीखने का ख्याल वो परमानेंटली छोड़ दे बोलकर गुड एंजल ने समझाया। पर जो जेबिल एंजल था उसने बताया कि
अगर तुम ये नॉलेज गेन कर लोगे तो पूरी नेचर की सीक्रेट जान जाओगे बोलकर। उसके बाद में Valdis and Cornelius tempted him into exploring magic while two other scholars tried to save him from his downfall। और Valdis और जो Cornelius उनके कॉलेजेस थे उन्होंने भी उनको टेम्पटेड किया कि तुम जादू सीख लो। और उनके दो दूसरे स्कॉलर थे, वो डॉक्टर फोर्टस को रक्षा करना चाहते थे, ये पावर ना सीखे और इससे उसकी डाउनफॉल हो सकती है बोलकर। पर डॉक्टर फोर्टस परफॉर्म अ रिचुअल टू समन द डेविल एंड मेफिस्टोफेलिस। पर स्कॉलर के समझाने के बाद भी डॉक्टर फोर्टस नहीं माने और उन्होंने रिचुअल समन किया डेविल एंड मेफिस्टोफेलिस को बुलाने के लिए। जब वो मंत्र पढ़ने लगे दोनों स्कॉलर के दिए हुए, तब लूसीफर का मिनिस्टर है जो मेफिस्टोफेलिस है, वो एक मॉन्स्टरस शेप में आ गया डॉक्टर फोर्टस के सामने। उसके बाद फोर्टस ऑर्डर हिम टू कम बैक विद द अपीयरेंस ऑफ अ मंक एंड सेंड अ मैसेज टू लूसीफर थ्रू हिम। और डॉक्टर फोर्टस ने कहा कि तुम अपनी जो मॉन्स्टरस शेप की रूप है उसे एक मॉन्क में बदल लो और उसके बाद में मेरा एक मैसेज लूसीफर को सेंड कर दो तुम्हारे द्वारा कि he want 24 years of unlimited power in exchange for his body and soul। डॉक्टर फोर्टिस ने कहा कि उसे 24 वर्ष तक अनलिमिटेड पावर चाहिए और उसकी एक्सचेंज में वो अपना बॉडी और सोल लूसीफर को सौंप देगा। Mephistopheles warned him that he is painful, but hell is painful, but Foetus seemed to have made it up his mind। मिस्टर ने समझाया कि जो नर्क है वो पेनफुल होगा, लेकिन फूतस जो थे वो अपने माइंड में सेट कर चुके थे कि उन्हें अपनी 24 ईयर्स तक फुल पावर चाहिए, यानी वो पावर के भूखे हो चुके थे और उन्होंने कहा कि मैं अपना बॉडी और सोल सौंप दूंगा। और वो एक एग्रीमेंट साइन करने लगे डेविल के साथ। His blood dry as he is signed an agreement with Lucifer in his own blood, but Mephistopheles warmed it to make it flow again। In the meantime, Wagner Porter's servant hired a poor young man, Robin, to work him and serve the devil। और जब डॉक्टर फोर्टस अपने ब्लड से एग्रीमेंट साइन करने लगे तब उनका जो खून था वो ड्राई हो गया। पर मिथुस्तफिलिस ने वो खून को गर्म करते हुए उसे फिर से बहने वाला बना दिया। और उसी टाइम जो वैगनर था फूटस का सर्वेंट, उसने एक पोर यंग मैन को हायर किया जिसका नाम रोविन था। और रोविन को ये काम दिया कि वो डेविल को सर्व करे। उसके बाद में Mephistopheles give Foetus a book that contained everything he want to know। Foetus enjoy his new power but on occasional doubt his decision। Mephistopheles ने जब एग्रीमेंट साइन कर लिया उसके बाद में फोर्टस को एक बुक दिया और उस बुक में हर एक डिटेल थी जो डॉक्टर फोर्टस जानना चाहते थे। डॉक्टर फोर्टस ने अपने नया पावर को एंजॉय कर रहे थे, साथ ही साथ वो अपने पावर को डाउट भी कर रहे थे। द गुड एंड इविल एंजल विजिटेड हिम। उसके बाद भी जब एग्रीमेंट साइन कर लिया तो गुड और इविल एंजल उनके सामने आए। एंड फोर्टिस इवन ट्राइड टू स्पीक टू क्रिस्ट बट इज टेम्प्टेड बाय मेफिस्टोफेलिस एंड इविल एंजल।
फुतस उसके बाद में जो क्रिस्ट हैं यानी ईसा मसीह हैं उनके साथ बोलने की प्रयास भी की, लेकिन वो टेम्प्ट हो गए थे मीफिस्टोफेलिस और इविल एंजल के बहकावे में। उसके बाद में लूसीफर इंट्रोड्यूस हिम टू सेवन डेडली सिन। लूसीफर आया और लूसीफर ने उनको 7 डेडली सिन के बारे में बताया। इन द मीन टाइम रोबिन वैंगर फॉलोवर यूज फोटस बुक ऑन स्पेल to try to help his friend Raphael having a woman his like। और जब लूसीफर डॉक्टर फूटस को 7 डेडली सिन के बारे में समझा रहे थे, उसी टाइम रोबिन जो वैगनर लेके आया था और यंग मैन जो डेविल के लिए सर्व करने के लिए लाया था, उसने डॉक्टर फूटस की बुक को स्पेल करके उसके फ्रेंड के लिए हेल्प किया, जिसका नाम रफ़े था, कि उसे एक स्त्री मिल जाए जो उसे पसंद हो। दोस्तों उसके बाद में दूसरे सीन देखेंगे तो फोर्टिस हैज बिकम द मोस्ट फेमस एंड स्किलफुल स्कॉलर एंड मैजिशियन इन यूरोप। उसके बाद में जैसे ही उसका ज्ञान बढ़ता गया वो एक स्किलफुल स्कॉलर हो गया और मैजिशियन हो गया यूरोप में। He has been to the court of all-powerful king and now visited Rome। वो सब पावरफुल किंग के कोर्ट में गया और वो विजिट किया रोम में, where he played tricks on the Pope and a cardinal and the court of the King of Germany, where he showed his power by bringing back the spirit of Alexander the Great and his wife and making Horn grow on an official who dared doubt his power. He also visited an impotent duke and his wife. In the meantime, Robin and Rafe, visited by Mephistopheles, who threatened to turn them into a cat and dog। जैसे दोस्तों हमने आगे ही बताया आप सभी को कि मेफिस्टोफेलिस के साथ डॉक्टर फीटोस रोम गए और उन्होंने पॉप के साथ ट्रिक्स प्ले किया, और हमने बताया कि वो एक ऑफिसर था जो डॉक्टर फुटस की पावर को डाउट कर रहा था, तो डॉक्टर फुटस ने उसे हॉर्न्स ग्रो कर दिया उसके हेड में। और उसी टाइम रॉबिन और राफेल स्पेल कर रहे थे मैजिकल बुक, तो मेफिस्टोफेलिस उन्हें डराता है कि मैं तुम्हें कुत्ता और बिल्ली बना दूंगा बोल के। तो दोस्तों दूसरे सीन पढ़ते हैं। द 24 years are nearly at the end and Futus know his death is approaching। 24 years बीतने वाले थे और फुटस को मालूम था कि उसका डेथ यानी मृत्यु आने वाला है। He bring Helen of Troy to the side of his fellow scholar at their request। उन्होंने पहले हेलन ऑफ ट्रॉय को उनके फेलो स्कॉलर के रिक्वेस्ट पर बुलाया। Faustus then received the visit of an old man who wanted to help him repent him। उसके बाद में जब उन्होंने हेलन ऑफ ट्रॉय को बुला लिया उनके फेलो स्कॉलर के रिक्वेस्ट पर, उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आया जो उन्हें फिर से रिपेंट करना चाहता था, यानी उन्हें फिर से जो क्रिस्ट है यानी उनको फिर से एक धर्म पर आने के लिए सहायता करना चाहते थे। ऑल्दो ही वांट टू गो टू हेवन, और डॉक्टर फुटस भी हेवन में जाना चाहते थे। हिज सोल इज सोल्ड एंड ही कांट, लेकिन उनका जो आत्मा था वो बेचा गया जा चुका था लूसीफर को, तो वो नहीं जा सकते थे। मेफिस्टोफेलिस बिंग हेलन ऑफ ट्रॉय फॉर फुटस। और जैसे हमने आगे बताया था आपको, मेफिस्टोफेलिस
ने हेलेन ऑफ ट्रॉय को फोर्टस का गर्लफ्रेंड के लिए होने के लिए बुलाया और हु एक्सप्लेन्स द टेस्ट ऑफ हेवन इन हर लिप्स, और फोर्टस ने हेवन का टेस्ट दिया हर लिप्स व्हेन ही किस्ड। तो उन्होंने जब हेलेन ऑफ ट्रॉय को किस्ट किया डॉक्टर फोर्टस ने, तो उन्हें हेवन का टेस्ट मिला। He then tells his fellow scholars about his sin and at midnight is taken by Lucifer and Mephistopheles amidst a thunderstorm and his own scream। और उन्होंने अपनी पाप को अपने फेलो स्कॉलर्स के सामने बताया, और उसी रात मिडनाइट को लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस उन्हें नॉर्गा ले गए, उन्हें हेल ले गए। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड एंड थीम, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। हमें उम्मीद है जो हमने अभी तक आपको बताया वो आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम बैकग्राउंड एंड थीम्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। तो दोस्तों, इंस्पायर फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ रियल जर्मन स्कॉलर हुज लाइफ बिकेम अ पॉपुलर लेजेंड सून आफ्टर हिज डेथ। ये जो ड्रामा है वो एक रियल लाइफ है और जर्मन स्कॉलर जो थे उसके लाइफ से आधारित है, और ये पॉपुलर हुआ यानी ये फेम आया जो ड्रामा था सुन आफ्टर हिज डेथ, यानी जर्मन स्कॉलर के डेथ होते ही ये जो ड्रामा है वो फेम में आ गया। डॉक्टर फोर्टस वॉज रिटर्न टूवर्ड्स द एंड ऑफ 16th सेंचुरी। जो डॉक्टर फोर्टस रिटर्न किया गया वो एंड ऑफ 16th सेंचुरी में किया गया था। इट therefore reflect the architecture between the religious medieval time that were coming to an end at the scholarly Renaissance that was gradually gaining ground। तो ये जो लिखा गया था वो रिलीजियस मिडिवल टाइम में लिखा गया था, और रिनिसा ग्रेजुअली गेनिंग ग्राउंड, जो रिनिसा था वो ग्रेजुअली ग्राउंड में जाने लगा था। यानी दोस्तों, जब पहले रिनिसा टाइम आया था तब जो व्यक्ति थे वो प्योरली क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते थे, यानी वो जो प्रिस्ट कहते वो मान लेते थे। प्रिस्ट या आप पास्टर के लिए वो जो कह दे उन्हें ही वो मान लेते थे। पर इस समय दूसरा, जैसे हम अभी डॉक्टर फोर्टस में इविल के बारे में पढ़ रहे थे, वैसे नॉलेज भी आने लगे। समटाइम्स कैटेगराइज एज अ हीरोइक ट्रेजेडी एंड समटाइम्स एज अ मोरलिटी पे। डॉक्टर फोर्टस हैज बीन पब्लिश्ड थ्रू द century with varied number of scenes and act and has been recreated on many occasions और स्टैंडिंग बाय जर्मन पोट्स जियो थी। तो दोस्तों, डॉक्टर फोर्टस जो थे वो स्टोरी नंबर ऑफ सीरीज में पब्लिश किए गए और डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन में रिक्रिएट भी किया गया। इट इज एक्सप्लोरेशन ऑफ फोर्टस लाइफ एंड सोल। मालवी कंफर्ट अस विद द फॉलोइंग थीम। डॉक्टर फोर्टस के लाइफ और सोल के बारे में इस पर एक्सप्लोर किया गया है, और मालवी जो थे उन्होंने हमें ये गिवन थीम दिया हुआ है। नंबर 1 पर आता है गुड एंड इविल। फोर्टस चॉइस ब्रिंग टू द सरफेस द गुड इविल dichotomy symbolized by the good and evil angels, heaven and hell, God and Satan, redemption and damnation, the temptation of power on earth at the cost of losing eternal happiness in heaven, and ultimately the dual character of human nature। तो हमें इस पर दिखाया जाता है गुड इविल के बारे में, गॉड शैतान के बारे में, यानी इस पर ओवल और हमें डुअल कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में दर्शाया गया हुआ है। उसके बाद में नंबर 2 पर जो आता है वो थीम रहेगा हमारा द रिलीजियस मिडिवल टाइम एंड द स्कॉलरली रिनिसा। फोर्टस हंगर फॉर मैजिक स्टार्टेड विद
his desire for further knowledge, which led him into abandoning God, which suggests a confrontation between religion and knowledge. और जैसे हमने देखा कि डॉक्टर फोर्टस अपने नॉलेज की चाह पर इतने बढ़ते गए कि उन्होंने गॉड को एबुडन कर दिया, यानी उन्होंने गॉड को एकदम से तत्काल वो छोड़ दिया। उसके बाद में हमें इस पर जो कॉन्फ्रोंटेशन मिलता है वो रिलीजियंस और नॉलेज के बीच में मिलता है। उसके बाद में जो थॉट थीम रहेगा हमारा, द इफेक्ट ऑफ पावर ऑन पीपल। While originally thirsty for knowledge and the unfolding of the secret of nature and the universe, once he is given access to it, Fortus uses his power to earn fame, play tricks on or for important personality in Europe, and punish whoever opposes him. Power is therefore used to satisfy Fortus' greed and ambition. और जब फुटस ये बैक मैजिक सीख गए तब उन्होंने क्या किया, तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि फुटस ने एक फेम तो अर्न कर लिया था, और उन्होंने जो ये पावर है वो अपने लिए यूज़ किया। जैसे उन्होंने ट्रिक्स पे किया जो उनके पावर को डाउट करते थे, उन्होंने अपनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी गेन किया, और पनिश करते थे जो उनके पावर्स को डिनाई करते थे। और फुटस ने अपने एम्बिशंस के लिए ही सिर्फ पावर को यूज़ किया। उसके बाद में जो लास्ट हमारा रहेगा वो हेल्थ के बारे में रहेगा थीम। डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल आर एक्सप्लोर्ड इन द प्ले, रेंजिंग फ्रॉम ऑल encompassing state of permanent pain to an invention to frighten children। जैसे हमें चिल्ड्रन को डराया जाता है, हम सभी जैसे बचपन में स्वर्ग नर्क के हमें आगे ये राह के बारे में बता दिया जाता है, तो दोस्तों हमें आगे फ्राइटन यानी हमें आगे ही डरा दिया जाता है इसके बारे में। और ये प्ले में भी बहुत से हेल के थ्रेटन के बारे में बताया गया है, जिसे पहले ही मेफिस्टोफेलिस ने वार्न कर दिया था कि हेल पेनफुल होगा बोलकर डॉक्टर फुटस को, पर फुटस ने अपना राह चुन लिया और वो जो है इविल एंजल और मेफिस्टोफेलिस के बातों में आकर अपना विजडम खो बैठता है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था वो आपने समझ लिया होगा, और ऐसे ही और MEG 01, MEG 02, MEG 04 यानी आपका जो सिलेबस रहेगा वो सब हम कवर करेंगे आगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर आप सभी को अच्छा लगे। धन्यवाद।